हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल थर्ड बीज में स्वागत है। माय नेम इज सुरेश कुमार झा एंड टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट ऑन need, want and demand. So basically for each and every startups, business, marketers or marketing students, this is very much necessary to understand what exactly is need, what is want and what is called demand, and differentiate between them properly so that they can formulate or they can come up with the proper market offering. They can understand the need and want of the customers very clearly and come up with such a product which can satisfy the need of the customer in a very appropriate way, and they can find out the need gap as well. तो इसलिए नीड वांट और डिमांड को समझना बहुत ही ज़रूरी है। बेसिकली किसी भी स्टार्टअप, किसी भी मार्केटर या किसी भी बिजनेस के लिए नीड गैप फाइंड करना, वांट और नीड को प्रॉपरली समझना एंड जो डिमांड है उसको फुलफिल करना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर उसे लॉन्ग टर्म में सरवाइव करना है और प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए तो आइए इस प्रेजेंटेशन में हम लोग इसी टॉपिक को एक्सप्लोर करते हैं। नीड, वांट और डिमांड पे बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नीड एक्चुअली। So need can be defined as, basically needs are the basic human requirements. Needs are essential for survival. They do not change over time. All human beings have same basic needs. Non-fulfillment of needs can lead to adverse outcomes. According to Maslow's theory of need hierarchy, the basic needs of every human being are food, clothing, shelter, love, security, self-esteem and self-actualization. Apart from this, entertainment, convenience, time-saving technology, these all are the need basically. तो नीड क्या है? वो बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट है। नीड्स सर्वाइवल के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है। अगर नीड्स का फुलफिल नहीं किया जाए तो उसके एडवर्स आउटकम्स हो सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं नीड कितने तरह के होते हैं। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ नीड्स एज पर द लेटेस्ट रिसर्चेज। वन इज हेडोनिक नीड। Hedonic goods basically appeal to emotions, are oriented toward fun and excitement, and they are motivated by pleasure seeking. तो जो हेडोनिक नीड होते हैं वो इमोशंस से अटैच्ड होते हैं, और हेडोनिक नीड फुलफिलमेंट होने से आदमी प्लेजर महसूस करता है, फन एंड एक्साइटमेंट का फीलिंग करता है। Secondly, utilitarian need. Utilitarian goods basically aim at fulfilling functional or practical needs, and they are motivated by end goal considerations. तो आइए अब दोनों में हम लोग कुछ डिफ्रेंसिएशन करते हैं। Utilitarian goods are consumed for practical and useful purpose, whereas hedonic goods are consumed for luxury purpose. Utilitarian needs are basically daily use products. These items are purchased routinely. These goods are consumers seek basically to meet basic needs and most pressing needs. यूटिलिटेरियन नीड्स का एग्जाम्पल ग्रॉसरी आइटम्स हो सकता है, गैस हो सकता है, दूध हो सकता है और डेली यूज का आइटम हो सकता है। Whereas hedonic needs are basically goods which are consumed for luxury purpose. These are the items which are not purchased very frequently on daily basis. Rather, they are purchased on rare basis or on special occasions. Consumers basically seek to fulfill pleasure, fun, enjoyment, thrill and excitement, जैसे कि स्पा ट्रीटमेंट, ज्वेलरी, वीडियो गेम्स और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसके। आइए अब हम समझते हैं
वांट क्या है? वांट कैन बी डिफाइंड एज द different options or alternatives available to fulfill a particular need. A want is something which improves the quality of life. आइए अब हम लोग नीड एंड वांट में डिफ्रेंशिएट करने का प्रयास करते हैं। नीड्स आर नेसेसिटीज और एसेंशियल्स बेसिकली, whereas wants are desires. Needs are essential for survival, whereas wants are not essential for survival. Needs do not change over time, whereas wants change over time. Non-fulfillment of needs can lead to adverse outcomes, whereas non-fulfillment of want may result in mental stress. बहुत ज़रूरी नहीं है, बट हो भी सकता है. Basically, needs are same for all human beings, basic needs, whereas wants differ from individual to individual. इसको एक ऐसे एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं. जैसे फूड एक नीड है, तो फूड में ब्रेड है, राइस है, देन पिज़्ज़ा है, बर्गर है, चिकन है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं. तो फूड जो बेसिक नीड है उसको फुलफिल करने के लिए जितने भी ऑप्शंस हैं उसको हम लोग वांट्स कहते हैं. तो ये पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है. आइए अब हम लोग समझते हैं डिमांड क्या है. बेसिकली demands can be defined as the willingness and capability to pay for need and want. However, there are 8 different states of demand according to Philip Kotler. Each state of demand has its own implication on marketing efforts. A marketer must be very much keen on observing as to which state of demand his product or market offering belong to, and formulate the suitable strategy to maximize his profitability out of his marketing efforts. तो बेसिकली डिमांड को डिमांड किसी भी नीड और वांट को पे करने का कैपेबिलिटी और विलिंगनेस अगर दोनों रहेगा तो उसे डिमांड के रूप में डिफाइन किया जा सकता है. बेसिकली डिमांड की 8 अवस्थाएं होती हैं अकॉर्डिंग टू द फेमस मार्केटिंग गुरु फिलिप कॉटलर. हर डिमांड का कुछ खास इम्प्लीकेशन होता है और मार्केटिंग एफर्ट पे. मार्केटर्स को ये बहुत ज़रूरी है कि वो हर स्टेट ऑफ डिमांड को प्रॉपरली समझें, अपने मार्केट ऑफरिंग के अकॉर्डिंगली और प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाएं, जिससे कि वो अपना जो भी मार्केटिंग एफर्ट है उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस ग्रोथ एंड एक्सपेंस. इसको हमने डिमांड को इस तरह से भी एक्सप्लेन किया है, विलिंगनेस प्लस कैपेसिटी टू पे इज इक्वल टू डिमांड. आइए अब समझते हैं कितनी अवस्थाएं होती है डिमांड की. बेसिकली देयर आर 8 स्टेट्स ऑफ डिमांड. They are negative demand, no demand, latent demand, declining demand, irregular demand, full demand, overfull demand and unwholesome demand. तो इस तरह से डिमांड की 8 अवस्थाएं हैं. मार्केटर्स को डिमांड की अवस्था को समझते हुए अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी फार्मूलेट करनी चाहिए, जिससे कि वो अपने एफर्ट्स का ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमम बेनिफिट ले सके. मैंने अपने नेक्स्ट वीडियो में सेपरेटली 8 अवस्थाओं को, डिमांड की 8 अवस्थाओं को एक्सप्लेन किया हुआ है. आप इसके बारे में डिटेल जानकारी के लिए प्लीज़ उस वीडियो को देखें. अगर आपको नीड, वांट एंड डिमांड से संबंधित किसी भी तरह का और जानकारी चाहिए तो कृपया अपने कमेंट में ज़रूर मेंशन करें. और डिटेल जानकारी के लिए मैंने अपना फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दोनों दिया हुआ है. कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें और मुझे लिखें और अपना वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर दें. थैंक यू फॉर नाउ.